We are the group 1 of MPhil 1 Psychology from Patna Women University, and the topic of our presentation is innovation and future trends in chronic health care. So first of all, we are going to discuss the following topics, as you can see in the contents which you can see on your mobile phones. Content में introduction, definition briefly, और उसके बाद हम importance of effective chronic disease management, उसके बाद current challenges, future trends, innovative models of care, role of technology in chronic disease care, and last but not the least, we are going to conclude everything. So before I begin, I'm going to ask you a pre-time question. आपके मुताबिक क्या लगता है आपको कि कितने % हमारी mortalities जो है वो chronic disease की वजह से cause होती है? 70%. कोई और? 60, 70. Exactly, you guys are actually spot on. हमारी according to WHO and the World Bank, हमारी जो total mortalities cost होती हैं, they are approximately around 74% to 80%. So you guys are spot on. And not just that, like we are going to an introduction. तो अब introduction में हम पहले यही introduce करा रहे हैं कि why we are studying this topic. तो आपके इसी क्वेश्चन को लिंक करते हुए हम आते हैं कि सबसे पहले तो ये chronic diseases जो हैं इतनी ज़्यादा mortality का cause है. उसके बाद ये नहीं कि यहाँ पे ख़त्म हो जाए. It has like a lot of strain. It causes a lot of strain on finances of not just the governments or healthcare institutions, but also the individuals who are actually suffering from these diseases. According to WHO, 47 trillion by 2030, we are expected to have this budget increase to $47 trillion. And according to WHO research of 2021, chronic diseases are one of the 10 most leading cause of deaths till now. So in this presentation, we are going to discuss how traditional model of care have proven to be insufficient and how we should introduce innovation in the care, which is going to be introduced by my group member Sahar and Zahra later on. And so basically, this is the purpose of our presentation. Now going to the introduction of chronic diseases. As you all know what chronic diseases are, but we have two specific definitions, one by O'Halloran et al. 2004 and one by World Health Organization 2024. And I'm going to conclude or summarize the definitions in few brief points. उनमें ये है कि chronic diseases इनको also non-communicable diseases कहा जाता है, और basically long duration diseases जिनकी 3 to 6 month या इससे भी ज़्यादा duration होती है, they are non-curable, या फिर अगर क्योर भी होते हैं तो बहुत ही extensive और painful या फिर बहुत ही ज़्यादा difficulties के बाद, और इसके अलावा ये fatal भी हो सकते हैं. और इनके जो ये क्यों कॉज होते हैं, कुछ जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं. और कॉमन जो क्रोनिक डिजीज़ हैं अकॉर्डिंग टू WHO वो हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर्स, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ एंड डायबिटीज़. So moving on to our most important part of this presentation, importance of effective care management. Why is effective care management important? Why are we actually studying this thing? So as we have already discussed about the budget, तो एक और इंस्टीट्यूट है हेल्थ पॉलिसी इंस्टीट्यूट, उसने ये एस्टिमेट लगाया कि अकॉर्डिंग टू द करंट स्टडीज एंड ऑल, उसके अकॉर्डिंग $10 बिलियन जो है मेडिकल कॉस्ट इसमें स्पेंड होती है, और $156 बिलियन सिर्फ और सिर्फ 2001 तक इस पर स्पेंड हुई है. और आगे जो प्रीमेच्योर डेथ्स हैं इसकी वजह से उनके ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन कॉज करें, वो भी $बिलियन में हंड्रेड्स ऑफ $बिलियंस में स्पेंड हो रहा है. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव दिस चार्ट, ये स्ट्रॉन्ग विडोल का एक चार्ट है. उन्होंने उसमें बताया कि किस तरीके से हमारी आप सिर्फ देख सकते हो 30% जो डेथ्स है सिर्फ और सिर्फ वो कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से कॉज कर रही है, या 90% इंजरीज की वजह से, बाकी सारी की सारी ऑलमोस्ट 70% जो हैं वो सब कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ या अदर क्रोनिक डिजीज़ की वजह से कॉज करेंगे. So this is also like basic structure of what we are going to study today, and this chart also highlights deaths in millions जो 2005 में 2015 और 2015 में आगे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ड्यू टू क्रोनिक डिजीजेस की वजह से. ठीक है, तो बेसिकली इफेक्टिवली हम लोगों को अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी 2020 क्रोनिक डिजीज, जैसे कि हमें पहले से पता है 70% ऑफ ग्लोबल डेथ्स की कॉज है.
इनकी स्टडी और इनको हेल्थ केयर में लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इनकी इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाए तो ये कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस कर सकती हैं। अर्ली इंटरवेंशन, रेगुलर मॉनिटरिंग और लाइफस्टाइल चेंजेस अगर हों और साइकोलॉजिकल सपोर्ट या फिर पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन मीन्स द मोर अवेयर द पेशेंट इज, द मोर इन्वॉल्व द पेशेंट इज, वी कैन इफेक्टिवली टैकल देम and cope with these things, and a person can live a very satisfied, happy life. Quality of life is going to increase. अब मैंने आपकी रोज चार्ट्स डाले हैं, देयर जस्ट फॉर लाइक रैंडम ओवरव्यू। ये बर्डन ऑफ डिजीज़ बाय कॉज की तरफ से हैं जो ऑलमोस्ट सेम हमने पढ़ा था। उसमें अगर आप देख सकते हैं कि एक पाकिस्तान का चार्ट है और एक वर्ल्ड का चार्ट है, एंड दिस इज़ द डेटा फ्रॉम 2021। यहाँ पर बताया जा रहा फ्रॉम ग्लोबली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कॉज 428 मिलियन डेथ्स। इसके बाद जो कैंसर है वो 186.37 मिलियन डेथ, और इसी तरीके से बहुत सारी जितनी भी ज़्यादा लाइक हाईएस्ट डेथ रेट है वो सारी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि क्रॉनिक डिजीज़ के कॉज हो जाते हैं। और इन पाकिस्तान में तो हाईएस्ट डेथ रेट है वो न्यूनेटल डिसऑर्डर्स की वजह से है। हाउएवर यू ऑल्सो नो कि न्यूनेटल डिसऑर्डर्स भी कुछ क्रॉनिक डिजीज़ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की वजह से भी कॉज होते हैं। लेकिन उसके बाद कैंसर या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी डिजीज़ they are the leading cause of deaths in Pakistan. So moving on to our next topic, the main current challenges in chronic disease care. We have a few challenges in the chronic disease care. According to World Bank, we currently have, like beginning आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, एक छोटा सा ये कहना like बहुत आसान नहीं होगा कि वर्ल्ड बैंक ने अभी अपनी स्टडी में 2019 में बताया कि we have the doctor and patient ratio at currently that is 1 to 1000, यानी एक डॉक्टर है 1000 पेशेंट्स के लिए। that is actually really alarming क्योंकि ये और it's not just that कि आगे आप स्टडीज़ में मैं बताऊँगी आपको कि by 2030 and by 2050 it is going to increase even more, millions में जाएगा ये गैप। और we are expecting कि ये जो हेल्थ केयर है और जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं इनकी मैनेजमेंट और मुश्किल होगी अगर इनोवेटिव मॉडल्स इनमें शामिल ना हो जाए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द मॉडल वी हैव इज फ्रेगमेंटेड केयर। व्हाट इज फ्रेगमेंटेड केयर? फ्रेगमेंटेड केयर मीन डिस्टॉर्टेड डिवीजन ऑफ केयर, यानी कोई एक फिजिशियन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वन पर्सन। यहाँ पे फिजिशियन डिवाइडेड है, डिफरेंट पेशेंट्स को देख रही हैं, कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है और ना ही कोई एक स्पेशलाइजेशन है, बट यू नो एक पेशेंट सेंटर्ड नहीं है, डिवीजन है, फोकस्ड नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे सबसे पहले तो स्टाफ शॉर्टेज होती है क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारे लोगों को देखे होते हैं, सुपरविजन में प्रॉब्लम होती है, डेटा के अंदर गैप्स की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो पेशेंट होती है वो फ्रस्ट्रेट होती है, हायर कॉस्ट होती है, बर्न आउट फील करती है। एंड अकॉर्डिंग टू 6P मॉडल्स ये सारे की सारी चीज़ें जिनमें यानी पेशेंट, प्रोवाइडर्स, पाथवेज, पॉपुलेशन, प्लेयर्स एंड पॉलिसी मेकर्स ये सब इस चीज़ में शामिल हैं अकॉर्डिंग टू कर्न एट ऑल। और अगर हम इनको सही तरीके से टैकल करें तो हम इसको काफ़ी अच्छी तरीके से लेकर जा सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज which we have already touched earlier वो है lack of patient engagement. This is why patient education is important क्योंकि अगर आपका पेशेंट जो है वो बीच में इन्वॉल्व नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, उसको अपील ही नहीं है कि उसकी प्रॉब्लम की वजह क्या है, तो कभी वो रिकवर नहीं हो सकता। सिमोन एट ऑल ने स्टडी की थी जिसमें उसने आई थिंक 543 उसने आर्टिकल्स लिए थे जिसमें से 10 उसने क्लिनिकल ट्रायल सेलेक्ट किए थे। एंड अकॉर्डिंग टू उसकी स्टडी we found that like the patient who are actually more involved in their health care and who are more aware, they recover fast, चाहे वो डायबिटीज़ की हो, खासतौर पे क्रॉनिक डिजीज़ में वो उनकी रिकवरी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। और अब हमारे आती है नेक्स्ट लिमिटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मेन टॉपिक ही हमारा ये है इनोवेटिव एंड फ्यूचर ट्रेंड्स इन क्रॉनिक डिजीजेस। तो लाइक एट द प्रेजेंट मोमेंट there are many technologies that are available to us, जिसमें EHRs, electronic health record, telemedicine, remote monitoring, AI, बहुत सारी। The world is like there is a race in technology worldwide, लेकिन हम लोग क्यों नहीं इनको यूज़ कर पा रहे? उसके कुछ रीजंस हैं, वो ये हैं जैसे कि कुछ सोशल इकोनॉमिक कंट्रीज़ होती हैं, लाइक लो सोशल इकोनॉमिक कंट्रीज़ होती हैं, उनके पास सबसे पहले बजट ही होता, और फिर बजट जिनके पास होता है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जिनके पास अवेयरनेस नहीं होती या फिर वो वॉरफेयर में
अर्ली केयर, पेशेंट को जल्दी से रिकॉर्ड कीपिंग या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जल्दी हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं। इसके बाद इसी से रिलेटेड सोशल इकोनॉमिक बैरियर्स जैसे रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, लो इनकम वाले, लैंग्वेज बैरियर्स, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन बैरियर्स, हेल्थ नॉलेज और लाइक बेसिकली इंश्योरेंस बैरियर। हर वो बंदा जो दूर रहता है, जिसको वो एक्सेस नहीं है फैसिलिटीज, अर्बन पॉपुलेशन है, वो सब इन चीज़ों में बैरियर में शामिल होते हैं। अब इसमें थोड़ी सी एग्जाम्पल आप सिंध के रूरल एरिया को या फिर कश्मीर या गिलगित साइड को आप देख सकते हो, वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको वहाँ से यहाँ आना पड़ता है, लाहौर जाना पड़ता है या इस्लामाबाद आना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, तो बर्डन और भी इंक्रीज होता है। और अकॉर्डिंग टू व्यू एट ऑल, जैसे कि आप देख सकते हो इस साइड में, इसमें चाइना में जो रूरल एरिया है, तो हम सिर्फ चाइना की बात करें, चाइना के रूरल एरिया के जो लोग हैं वो स्किप कर देते हैं अपने एसेंशियल क्रॉनिक केयर को बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट द टॉपिक, द करंट चैलेंज वी आर फेसिंग इज इनएडिक्वेट हेल्थ केयर वर्कफोर्स। इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट ने ये रिसर्च किया है, जिसमें प्रोजेक्ट किया उन्होंने कि ग्लोबल गैप जो हेल्थ केयर और पेशेंट के बीच में इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 10 मिलियन बाय 2030। और ये इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और लॉन्गर वेट्स, वर्सन पेशेंट कंडीशन, प्रोग्नोसिस आपका जो है वो सही तरीके से नहीं होगा, और रिकवरेबिलिटी जो है वो कम होगी। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात है, टेंशन बंदा नहीं पे कर सकेगा। आप अगर लाइक एक साथ 1000 पेशेंट्स को डील कर रहे हो, तो आप किस तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग कर सकोगे, आपको कैसे पता होगा कि क्या कौन है, उसको टेंशन की ज़रूरत है। तो मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट ने थोड़ी सी स्टडी की थी, और उनके अकॉर्डिंग ये 7% ऑफ डिजीज़ मैनेजमेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम लोग इसको, और मोर्टेलिटी और सफरिंग को रोका जा सकता है अगर हम इस गैप को कवर करें। एंड लास्टली फ्रॉम माई टॉपिक आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अ ब्रीफ केस स्टडी जो पाकिस्तान में कंडक्ट की गई थी, कि किस तरीके से कुछ दो डोमेन जो हैं उनके बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसी तरीके यही इन्हीं चैलेंजेस की बेसिस पे। सो बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो थे उनको कंपेयर किया गया था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से जो मैनेज किए जा रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट का जो फुली पब्लिक हेल्थ का उसको, और एक सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ, जिसका नाम है पीपल्स प्राइमरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव PPHI। तो कंपैरिजन में साफ रिजल्ट ये मिला था कि जो PPHI है वो बहुत इफिशेंटली मैनेज कर रहा है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। और उसकी रीजंस मेन यही है कि उनके पास एक तो वो थोड़े ज़्यादा इनोवेटिव हैं, एक तो उनके पास अवेयरनेस है, ऊपर से वो क्योंकि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो उनके बजट का और भी सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं, लेकिन दे वर एक्चुअली वेरी वेल ऑर्गेनाइज मैनेज, और उनके मेन जो चीज़ें थी वो इनोवेटिव थी, तो उनके सारा फोकस इनोवेशन पे था, जिसकी वजह से उनके पास एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट में स्टाफ अवेलेबिलिटी नहीं थी, एब्सेंटिज्म यानी कि काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ होने करते थे, और एज कम्पेयर टू PPHI वहाँ पे अवेलेबल भी था स्टाफ, आपके पास एसेंशियल मेडिकल सेंटर में एक्सेस भी थी, और डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी इम्प्रूव थी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। Patient fitness. So there are some development
heart failure. And AI-based system can also be able to manage care condition among different people and reduce data silos. And the fourth one is telehealth and digital health. Telehealth or digital health is also an AI-based system. It's also an AI-based system. It includes, for example, Dexcom G6, क्योंकि फिट होता है एक patient with diabetes, which is used to monitor their real-time data so that they can provide to healthcare providers to receive the intervention on time. और ये telehealth और digital health was also used at the time of COVID. क्योंकि उस टाइम जो है लॉकडाउन था तो काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ किया ताकि वो अपनी जो कंडीशन है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को बता सकें और दे कैन रिसीव देयर ट्रीटमेंट एज वेल ऑन द टाइम. The last one is artificial intelligence and machine learning. Artificial intelligence is used to manage chronic illnesses on time. For example, Google's MindBeat, which is used to predict the failure of kidney before 48 hours so that person can receive treatment before the failure. It is also used to manage self-care management in the different points like diabetes and hypertension. Case study which includes the single health system or a leading US-based healthcare provider known for the adoption of data-driven approaches and value-based to manage chronic diseases. Conducted a research that AI-driven predictive analytics develop a tool which is used to find the patient with a high risk of readmission in hospitals. So after findings, they found out that it helped to reduce hospital readmission in 30 days and decreases emergency department visits and improve patient satisfaction and substantial cost savings. Now I am going to explain innovative models of care. First one is accountable care organization. Accountable care organization unite providers to deliver cost-effective quality care using value-based models, reducing issues like heart failure through prevention. Second one is patient-centered medical homes. Patient-centered medical home deliver team-based, tech-enabled and coordinated care to improve chronic diseases management and reduce hospital visits. And the third one is care coordination and management. Care coordination like care for chronic patients using virtual nurses to cover readmissions and AI chatbot for scheduling and variable like current health for vital tracking. So these all are the innovative models we can use in the future to manage the care of chronic diseases in people all around the world. So the next topic will be presented by Sahar. Good morning, class. Myself, Sahar Khan, and I'm going to present today's role of technology in chronic disease here. So, technology has emerged as a powerful enabler in chronic disease management, supporting healthcare systems with tools that improve patient outcomes and optimize healthcare delivery and reduce cost. So, digital health innovations like electronic health records (EHRs) and mobile health (mHealth) applications, wearable devices, and telehealth platforms have reshaped the landscape in chronic care, making it more patient-centered and data-driven. According to Milani 2016, recent advances in home-based devices, apps, and wearable enable near real-time monitoring and patient engagement, offering a transformative model for chronic disease care.
related. For example, टेक्नोलॉजी फिजिक्स के कुछ एग्जाम्पल जैसे EHR में आता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। इसमें होता है कि कोऑर्डिनेट के प्रोवाइड की जाती है, जैसे प्राइवेट केसेस में होता है शेयर रिकॉर्ड बिटवीन GP एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट प्रिवेंट डुप्लीकेट टेस्ट एंड इम्प्रूव ट्रीटमेंट। इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको बताते हैं कि आपका जो लेवल हो। सेकेंड है मोबाइल हेल्थ MH हेल्थ एप्स। MH हेल्थ एप्स लाइक माई शुगर बूस्ट सेल्फ मैनेजमेंट violating with diabetic patient track sugar levels and get feedback and share data with the times for timely intervention। इसमें होता है कि ये एक ऐसा ऐप है जिसमें डायबिटिक जो पेशेंट होता है उसका शुगर लेवल का पता चलता है, ठीक है। उसके बाद पता चलता है कि उनका क्या उसको फीडबैक है शुगर का, ठीक है। उसको कुछ डाटा शेयर किया जाता है केयर के साथ जो कि टाइमली उसकी इंटरवेंशन होती है। Third one is wearable sensors and devices. Wearable like freestyle label give real-time glucose data, helping diabetic patients avoid finger pricks and enabling providers to just adjust treatment quickly. वेरिएबल सेंसर एंड डिवाइसेस ऐसे कि अगर आप मतलब कि कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो आप पहन भी सकते हो हाथों पे सर पे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसके शुगर को बैलेंस करना चाहते हैं। हेल्थ के टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म में आता है लेट्स पेशेंट इन रिमोट एरियाज लाइक रूरल हाइपरटेंसिव पेशेंट कंसल्ट स्पेशलिस्ट virtually in share home monitor data reducing travel and ensuring on way care। इसमें होता है कि आप वर्चुअली अपने जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ आप कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। स्पेशलिस्ट के साथ घर में होम मॉनिटर डाटा होता है वो शेयर कर सकते हो ताकि जो ट्रैवल का टाइम है वो रिड्यूस हो। देयर इज अ केस स्टडी called Empaticus Embrace 2. It's kind of smart watch which detects and monitors tonic seizures in epilepsy patients. This device uses psychological signals as temperature, motion, and electrodermal activity to detect seizure, which sends alert signals to caregivers. It is FDA approved for monitoring seizures in adults from 18 and children aged above 6 above and 29। इसमें होती है ऐसे वॉच स्मार्ट वॉच है जो डिटेक्ट करती है पेशेंट की जो सीजर वाला पेशेंट होता है वो उसका जो सिम्टम्स होते हैं वो जो केयर होते हैं उनको पता चल जाता है जब वो ट्रैक करते हैं, ठीक है। Conclusion is there is an urgent need for tackling chronic diseases considering the growing patient burdens, rising healthcare costs and systematic inefficiencies. The key challenges may include limited technology integration, poor patient engagement and fragmented care. However, futuristic strategies such as patient-centered care models, integrated care systems, use of AI technology जैसे EHR का बताया था, MHealth apps हैं, ठीक है, टेली हेल्थ एंड वेरेबल डिवाइसेस जो हैं and personalized medication may pave a widely pathway to transformation. Thank you.